17 دسمبر 2023 بروز اتوار اسلامیہ بائیس ہائر سیکنڈری اسکول وانمباڑی میں شام 7 بجے ایک خصوصی محفل کا انعقاد کیا گیا، جس میں مرحوم ڈاکٹر فا عبدالرحیم صاحب کی زندگی اور خدمات پر روشنی ڈالی گئی۔ ڈاکٹر فا عبدالرحیم صاحب اپنے وفات تک شاہ فہد قرآن پرنٹنگ کمپلیکس کے مرکز ترجمہ کے ڈائریکٹر کے حیثیت سے خدمت انجام دیتے رہے۔ مرحوم کا آبائی وطن جنوبی ہندوستان کا علی گڑھ کہنے والا شہر وانمباڑی تھا، لہٰذا ان کی رحلت پر اس تعزیتی اجلاس کا انعقاد شہر کے اہم فلاحی اور تعلیمی اداروں نے مشترکہ طور پر کیا۔ جناب کاکا انیس احمد صاحب جنرل سیکرٹری جامعہ دارالسلام عمر آباد اور جناب ایچ عبدالرقیب صاحب جنرل سیکرٹری ہندوستانی مرکز برائے اسلامی مالیات نئی دہلی نے بھی اپنے خیالات اور جذبات کا اظہار کیا، جسے ہم اپنے ناظرین کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین۔ محترم و معزز صدر اجلاس، عمائدین شہر اور متعلقین ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب، اللہ کے رسول کا یہ قول ہے، اذکروا محاسن موتیٰ، تمہیں جو وفات پا چکے ہیں ان کی خوبیوں کو یاد کرو، ان کی نیکیوں کو یاد کرو۔ آج ہم جس عظیم ابخری شخصیت کو یاد کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، وہ عالم انسان کی ایک مایہ ناز شخصیت اور اس سرزمین وانمباڑی کے عظیم سپور ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کی زندگی ایک مصروف ترین زندگی، آخری دم تک انہوں نے قرآن فہمی اور حدیث فہمی کے لیے جو آسانیاں جو پیدا کی ہیں، یہ ہم کبھی بھول نہیں سکتے۔ دنیا میں کچھ لوگ تاریخ پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، کچھ لوگ تاریخ لکھتے ہیں، دکھاتے ہیں، لیکن کچھ شخصیت ایسی ہیں جو تاریخ بناتی ہیں۔ ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کی شخصیت ایسی ایک تاریخ ساز شخصیت تھی۔ ڈاکٹر صاحب لسانیات اور خصوصاً عربی زبان کے حوالے سے بین الاقوامی شہرت کے حامل تھے، لیکن انہوں نے پوری زندگی نام و نمود سے دور رہ کر نہایت سادہ مگر حرکت و عمل سے بھرپور زندگی گزاری، اور ایک ایک لمحہ زبان وحی اور خدمت قرآن میں آپ نے سر یہاں تک کہ آپ کی زندگی کا آخری دن بھی جوش عمل سے بھرپور گزرا۔ میں ڈاکٹر صاحب کو ایک خود ساز انسان سمجھتا ہوں، صرف میں شخصیت، اس لیے کہ وہ عجم کے ایسے عربی دان تھے جنہوں نے عربی زبان کسی درسگاہ میں داخلہ لے کر نہیں، بلکہ اپنی ذاتی دلچسپی اور انتہا درجے کی محنت اور لگن سے دن رات ایک کر کے سیکھی تھی۔ جس کسی کے بارے میں معلوم ہوتا کہ ان کے مقصد کے لیے مفید ہو سکتے ہیں تو آپ ان کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور ہر ممکن طریقے سے استفادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج سے تقریباً 65 سال کی بات ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا رجحان عربی زبان سیکھنے کی طرف بڑھا۔ آپ وانمباڑی کی ایک مشہور شخصیت میرے چچا مرحوم کاکا محمد زبیر صاحب کی ایک سفارش نامہ لے کر عمر آباد پہنچے، جس میں لکھا تھا کہ اس نوجوان کو عربی سیکھنے کا شوق جنون کی حد تک ہے، لہذا ان کا علمی تعاون کیا جائے اور انہیں عمر آباد کی عمر لائبریری سے کتابیں فراہم کی جائیں۔ اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے عمر لائبریری سے بھرپور استفادہ کیا۔ تقریباً ہفتہ اشرہ میں ایک مرتبہ عمر آباد تشریف لاتے، نئی کتابیں تلاش کرتے اور پرانی کتابیں لوٹا دیتے، نیز اپنے شکوک و شبہات کو جامعہ کے شیخ الادب مولانا امین احمد صاحب عمری ابن جناب علامہ فضل اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے شکوک و شبہات ازالہ کرتے، اور خود مولانا کاتب یوسف صاحب سے بھی اس سلسلے میں تبادلہ خیال کرتے، اپنی شکوک کو ازالہ کرتے۔ مولانا امین احمد صاحب کیونکہ بانا پڑھی تھے، اس لیے ان سے رجوع کرنا ان کے لیے آسان تھا۔ بعد کے ادوار میں خود مولانا حفیظ الرحمن عمری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی تبادلہ خیال کا سلسلہ جاری رہا۔ اس وقت سے
जामिया से आपका ताल्लुक कायम हुआ वो आखिर दम तक बरकरार रहा। बल्कि जब भी आप आंगनबाड़ी आते जामिया ज़रूर तशरीफ़ लाते और अपने ज़कीम ख्यालात से तलबा को और असاتذہ को मुस्तफ़ीद करते। डॉक्टर साहब अरबी ज़बान में इस कदर माहिर और मुमताज़ थे कि आपने न सिर्फ अजमियों को अरबी सिखाई बल्कि अरबों को भी अरबी सिखाई और पूरी दुनिया में इल्म लिसानियात में मर्जा बन गए और दुनिया ने अरबी लिसानियात में आपकी अफसरियत को तस्लीम कर लिया और आपका लोहा आपने मनवाया। अरबी ज़बान की खिदमत के हवाले से डॉक्टर अब्दुल रहीम साहब का एक बहुत बड़ा कारनामा आपकी किताब दुरूसुल लुग़्अतिल अरबिया बिग़ैरिन नातिक़ीन है, जो ग़ालिबन 1980 में पहली बार शाये। डॉक्टर साहब ने किताब मदीना यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करने वाले उन नौजवान तलबा को ज़हन में रखकर लिखी थी, खुसूसन चीन, अमेरिका, बरतानिया, रूस और बहुत सारे मगरबी ममालिक से आने वाले तलबा से जो अरबी से नाबलद थे। जब ये किताब तैयार हुई तब से ये मदीना यूनिवर्सिटी में शोबा अरबी के निसाब में आज तक शामिल है, जिसे पढ़कर ऐसे तमाम तलबा मुख्तसर मुद्दत में अरबी बोलचाल में माहिर बन जाते हैं। इस किताब की कामयाबी का राज दो बातों पर मुनहसर है। पहली बात तो ये थी कि डॉक्टर साहब ने इस किताब की में मौजूदा असबाब के अंदर रोज़मर्रा ज़िंदगी के पेश आने वाले डायलॉग्स को सवाल जवाब की शक्ल में पेश किया। मसलन बाजार जाने के बाद ताजिर और गाहक के दरमियान होने वाली गुफ्तगू, अस्पताल में मरीज और डॉक्टर के माबैन बातचीत होने वाली गुफ्तगू, क्लासरूम में उस्ताद और शागिर्द में होने वाले मुकालमा, हॉस्टल में दो दोस्तों के दरमियान होने वाले तबादला ख्याल, ये और इन जैसे मौज़ूआत को मज़कूरा किताब में बड़ी सलीक़े से आम फहम अंदाज में पेश किया, जिसका नतीजा ये है कि अरबी ज़बान के सिलसिले में ये जो मशहूर है, ये बड़ी मुश्किल ज़बान है, ये तसव्वुर को ख़त्म किया और तलबा को अरबी न सिर्फ आसान ज़बान मालूम हुई बल्कि उसके हासिल करने का शौक़ भी बढ़ा। असातिज़ा इस किताब को पढ़ाते हुए तलबा से क्लासरूम में उन मुख्तलिफ डायलॉग्स को इल्मी मश्क़ कराते, जिससे इस किताब की ताबीरात उनकी ज़बान पर चढ़ गई और उन्हें बेखौफ होकर बोलने का बोलचाल में आसानी होगी। और दूसरी बात, हिंदुस्तान में अरबी ज़बान सिखाने का जो राइज तरीक़ा बिल्कुल अलग है। यहाँ पहले क़वाइद सिखाए जाते हैं और उनकी रोशनी में ज़बान सिखाई जाती है। ये तरीक़ा बरसों से राइज है, जिस पर बड़े बड़ों ने तनकीद की। आज से 100 साल पहले प्रोफेसर आर्नल्ड, जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में अल्लामा शिबली के उस्ताद थे, अंग्रेज़ी के उस्ताद थे और अरबी के अल्लामा शिबली के वो शागिर्द थे, तो वो इस मुरवजा अरबी पढ़ाने के तरीके से काफ़ी दिक्कत महसूस करते थे। में फिर जाता और वो जब तक एक किस्म पैदा नहीं हो सकी नस्बुलैन का उसूल हाल आप जान के हैरत होगी कि जब मदरसे जामिया जमालिया कायम हुआ तो वो मिस्र तशरीफ ले गए और वहाँ के शेख हज़रत से भी और शेख तंदावी उस ज़माने में जो जवाहर कुरान के मुसन्निफ थे, एक बहुत ही मायनाज़ मुफस्सिर, उनसे उन्होंने दरियाफ्त किया कि हमारे इलाके में मदारिस में जोग्राफिया और हिसाब नहीं पढ़ाते, ये कैसा है। तो शेख तंदावी ने अपने तर्जुमे में, अपने मुकदमे में जो जवाहर कुरान में लिखा है, एक शख्स आया था, ताजिर कहता है अपने आप को जमात मोहम्मद के नाम से, और वो कहता है कि मदरसे में जागरफी और जो है मैथमेटिक्स शायद इस शख्स को मालूम नहीं। और उसके बाद शेख तंदावी ने लिखा कि मेरी जो किताब है, मेरी जो तफसीर है, उसके बारे में भी वो लोग बहुत महसूस करते थे। मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूँ कि उन्होंने जो खुतबात मदरास का सिलसिला शुरू किया था, एक तो अल्लामा इकबाल को उन्होंने दावत दी, खुद पहुँच कर लाहौर पहुँच कर दावत दी कि वहाँ लाए द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द रिलीजन इन इस्लाम। ये बहुत ही दकीक किताब है, इश्तिहाद इस्लाम में की ज़रूरत है और इसके बारे में अल्लामा इकबाल ने लिखा था। खुतबात सीरत जो अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी अलैहिर्रहमान ने लिखी है, वो शाहकार है सीरत के लिए। और फिर महमूद इकबाल को उन्होंने लाया तमद्दुन इस्लाम, कल्चरल साइड ऑफ इस्लाम, ये बहुत ही अहम किताब है। मैं इसलिए यहाँ इन चीज़ों का तस्करा करता हूँ कि वालनबाड़ी का जो सेलेक्ट मजमुआ है और मैं नहीं समझता कि आगे भी हमें ऐसा मजमुआ मिल सके, तो मैं चाहता हूँ कि आप जो है इन किताबों का भी मुताला करें और ऐसी शख्सियत को जो बहुत मालदार भी था
लेकिन उसे फिक्र थी, और ये हमारे कमरे का कारोबार भी था, लेकिन उसकी जो फिक्र थी वो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग में भी था। वो तिजारत के लिहाज से जो अपनी तिजारत के लिहाज से जो है वो इंग्लैंड में गया था, और फिक्की का जो मतलब फाउंडर मेंबर था स्कूल में। तो ऐसी शख्सियतों को हमारे दरमियान पैदा करने की जरूरत है। और फिर एक दूसरी शख्सियत जो माजिया करीब में पैदा हुई हमारे हिंदुस्तान हैदराबाद से, जिनका ताल्लुक भी मद्रास से था, डॉक्टर हमीदुल्लाह। डॉक्टर हमीदुल्लाह साहब जो हैदराबाद में थे, हमारे जो काजी हैं उनके रिश्तेदारों में से, नवाब में से थे उनके, और वो उस वक्त है वो जर्मनी गए, फिर फ्रांस गए, और उन्होंने बैनुल अक़वामी कानून में जो है उन्होंने तालीम हासिल की, और निज़ाम के लिए जो है हैदराबाद दक्कन जो है हिंदुस्तान में नाम होने लगा था, उसकी पैरवी के लिए जो वो यूनाइटेड नेशंस गए और फिर वापस नहीं हो सके। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो है इन्होंने, जैसे कि डॉक्टर साहब के इसी तरीके से जो वो उर्दू, फारसी, फ्रांसीसी और फिर तुर्की के अलावा मुख्तलिफ ज़बानों से वो वाक़िफ़त रखते थे। मैं इस मौके पर आपसे गुजारिश करूँगा, उनकी एक किताब है खुतबात बहावलपुर, आप में से हर शख्स उसको पढ़ना चाहिए। वो शख्स था बिल्कुल जो है फकीर किस्म का, जावलर साहब ने उनको दावत दी कि बहावलपुर आगे जो है 12 खुतबात दें, तो उन्होंने कोई किताब नहीं थी उनके हाथ में, कोई जो है कोई कागजात भी नहीं थे, उन्होंने फिल्म बंदी उसमें बात की है, और फिर उसके बाद सवालात का सिलसिला भी वो शुरू था। मैं जिस वक्त जब मैं पढ़ रहा था उसको, तो मैंने उसी वक्त औरत जो है 20 कापियाँ जो मैंने लोगों के तक पहुँचाई, लेकिन उसमें बात ऐसी बातें भी थी जो हमारे रिवायात से हटते थी, तो लोगों को पसंद नहीं आया। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि इस सिलसिले में आप ज़रूर जो है उसे पढ़ने की कोशिश। मैं मेरे मुरब्बी और मुशरिक जनाब जमील अहमद साहब का तज़किरा करूँगा यहाँ पर, कि जब मैं पेरिस के जो दफ्तर के ले जा रहा था, उन्होंने डॉक्टर हमीदुल्लाह साहब को है खत दिया खुतबात बहावलपुर के बारे में। और आप जानते हैं कि पेरिस के दफ्तर के दौरान में पेरिस में जो है स्ट्रीट जो है जो स्ट्रीट गलियाँ जो होती हैं बिल्कुल ये होती हैं, संसार होती हैं, और फिर ये साहब जो है डॉक्टर हमीदुल्लाह साहब 7वें माले पर थे, और फिर सीढ़ियाँ भी कुछ लिफ्ट ही नहीं था, और मुझे फ्रांसीसी जबान भी नहीं आती थी। और जब मैंने देखा कि किसी ने कहा कि एक शख्स मगरिब की नमाज के लिए आएगा, तो उस वक्त तो मैं जो है उसके पास पहुंचा और जमील अहमद साहब का खत किया, और उनसे कहा कि बहावलपुर का जो है आपका जो ये है वो देखें। उन्होंने कहा जमील साहब, जमील को क्या इतना भी है नहीं, अभी तो 1 साल हुआ है, इस सिलसिले में कैसा है वो पहुँच जाएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें इस मुल्क में, इस शहर में हमें जमाल मोहम्मद जैसा शख्स पैदा होना चाहिए, और फिर डॉक्टर हमीदुल्लाह साहब जैसे शख्सियतें भी पैदा होनी चाहिए।